Namaskar and very good evening to all. As and when the word exam comes in our mind, it creates a different thought or emotion, which is a discomfort. In the series of Education for Life, today's topic is the exam story. And the eminent panelist for today is Professor Sridhar Srivastava, Joint Director, NCERT, former Chairman, National Institute of Open Schooling, that is NIOS. Welcome, Professor Sridhar. Namaskar. Sir, Jaisa, the preface of the today's topic, I narrated that the moment the exam terms comes in our mind, it creates a level of discomfort, or we may say it is examination phobia. So your understanding towards examination phobia, you can take much time to elaborate it. Yeah, you see, first of all, I thank you and the organizer, mainly the Trizen Technology, to take this topic up for discussion and inviting me for the discussion. Exam as a phobia, I think each one of us at some point of time, we have felt. And when it comes about the terminal examination, that increases and that is more prominent. तो इसको फोबिया के रूप में है, ठीक है, लेकिन इस फोबिया को कैसे हम हैंडल करें वो तो उस इंडिविजुअल पे ही डिपेंड करेगा. और इसमें हमें एक चीज ये समझना चाहिए, और मेरा ये विचार भी है कि इस फोबिया को हैंडल करने में वो व्यक्ति जो उस डर से ग्रसित है और उसके सानिध्य में जो लोग रहते हैं, different stakeholders, maybe the parents or the surrounding society, immediate society, member of the society, teachers, उनका भी बहुत रोल बढ़ जाता है कि इस फोबिया को कैसे वो व्यक्ति हैंडल करे. मेरा ये विचार है. जी, well said. It is not an individual's responsibility. It is more important how you ease out with your this negative emotion or expression termed as phobia. Usually होता है कि जब भी हमारी तैयारी कितनी भी हो, no matter whether it is competitive examination or academic examination, there is a certain level of anxiety. Many times students, they forget to perform well, or they do not perform their natural game. Your take on what does it mean by anxiety, and especially when it comes to just before examination? You see, Professor Sharma, what I mentioned just now, that it also depends on the people who are there surrounding that person. I tell you why that is important, because this examination we have to take in a very philosophical manner. And I tell you, right from the very early stage, we in our family, and whenever we get or come across any person who is going in examination, first of all, we should try to instill in the mind of that person, that child, that he or she has to face many more examinations in life. You see, it is taken as a very colloquial, but I tell you, it's very true situation that one has to undergo. I tell you a very recent example. Every day we are seeing the newspaper, layoffs, okay, from Twitter, Amazon, and even 2 days ago, there was a huge number layoff from McKinsey, a world-known consulting firm. So you see, the victims of those layoffs, I'm sorry, I should not use the word victims. The persons who are impacted by that layoffs must have undergone many pressure to create that examination like IIT, IIMs, or whatever. But they have been put into a situation which is no less than any other exam in life or pressures. So, and
education is also talked about, and education is real, that lifelong learning, resilience, okay, relearn. So these kind of things जो है कि थोड़ा बच्चों से हमें school as a learning space, as a parents, as a society, as elders, हमें उनसे बातचीत करते रहना चाहिए. तो ये थोड़ा बच्चों पे इसका फर्क पड़ता है, ऐसा मेरा मानना है. Rightly said, Samvad is the only thing I think that is most essential aspect which can ease out this expression, negative expression of anxiety. संवाद की जब बात करते हैं तो सबसे पहला जो इंस्टीट्यूशन है जो इमीडिएट सराउंडिंग है that is our parents and family members. So most of the time we have seen that parents, they put up their own aspirations on a child. They set a level of performance rather than evaluating his interest and capabilities and gradually enhancing or helping him to enhance his capabilities. We direct at a line that you need to score this much of percentage. Otherwise, if you don't perform, you will find a drastic change in their behavior, of their necessities, even up to that level. So this is a biggest issue, I think, in the society earlier also and today also, might be tomorrow's society also. So I request you to, please give a holistic view on in what way we can address this problem, which is related to parenting, basically. ये जो देखिए पेरेंट्स के एस्पिरेशन वाली बात है ना, आपने सही कहा, ये पहले भी था, अभी भी था और आगे भी होगा. लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि पहले, अभी या आगे भी कुछ ऐसे पेरेंट्स होंगे जो कि बच्चों पे एस्पिरेशंस अपने नहीं लादते होंगे. और मैं कहूँगा कि वो पेरेंट्स बहुत ही अवेयर्ड, मैं कहूँगा कि वो होंगे. जैसे पहली बात तो ये है ना कि जैसे लर्निंग को एक हमने समझ रखा है कि सिर्फ कॉग्निटिव लर्निंग को ही, जो कि एग्जामिनेशंस से इवैल्यूएट होता है और जिसको हम पास करके अच्छे मार्क्स लाते हैं फिर एडमिशन में और इसमें इन द एग्जिस्टिंग सिस्टम. लेकिन जो अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन के जो एस्पेक्ट्स हैं जिसमें कि एक व्यक्ति को डेवलप होना है, उसके लिए हम बहुत अभी तक सिस्टम में नहीं सोच पा रहे हैं. अब आपको पेरेंट्स के साथ मैं सिस्टम इसलिए भी कह रहा हूँ कि पेरेंट्स का कई बार हो जाता है, बहुत ही मजबूरी में भी वो अपना उनका प्रेशर हो जाता है. तो इसको सिस्टम को भी थोड़ा चेंज करना पड़ेगा. लेकिन मेरा ये मानना है कि वॉट एवर बी द सिस्टम, हमको बच्चों को ये तो जरूर बताना चाहिए कि देखो बच्चा, जिंदगी में आप अटेम्प्ट करो, बहुत अच्छा अटेम्प्ट करो, बट health is also important. You be a right person. Right means a person of empathy, sympathy, a person of huge capacity to learn, to do labor, work hard, be honest, judicious, collaborative. These kind of things भी हमें बताना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा कॉग्निटिवली परफॉर्म करके आगे जाके जब ग्रुप में परफॉर्म की बात आती है तो उनके साथ प्रॉब्लम आती है. तो अभी तो जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने इन सब चीज़ों को बड़ी ही होलिस्टिकली एड्रेस किया. मतलब कि यू सी स्कूल एज ए लर्निंग स्पेस हैज not only the responsibility of developing a child into intellectual aspect or academic aspect, rather the social ability, physical ability, emotional ability, mental ability of the child, aesthetic ability. These all things are to be developed within a school as a learning space. So the National Education Policy 2020 is very clear about that. And now we have to see how it really comes into the practice. I think NEP की जो आपने बात कही वो अभी तक स्कूल और एकेडमिक सिस्टम के लोग ही उसको दे आर ट्राइंग टू फाइंड आउट देयर इंटरप्रिटेशंस और मींस टू एग्जीक्यूट दैट पॉलिसी. पेरेंट्स को भी इस प्लेटफॉर्म से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आपसे भी इस पे प्रकाश की गुजारिश करूँगा कि पेरेंट्स आर ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स. हाउ कैन दे बी brought align, bring them aligned to the NEP mechanism so that
for the purpose of effective implementation of NEP? या देखिए, मैं इसके बारे में सबसे पहले तो मैं ये पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का जो दस्तावेज है, ये बहुत ही एक 60-65 पेज का डॉक्यूमेंट है, जिसमें स्कूल एजुकेशन के बारे में शुरू के 8 चैप्टर हैं, और उसमें भी अब मैं और फोकस करके बोलूँ तो चैप्टर 4 है, जो कि करिकुलर रिफॉर्म और पेडागोजिकल रिफॉर्म के बारे में बात करता है। उसका सार जो मूलतः ये है कि सबसे पहला, और वो प्रिंसिपल में भी एनईपी ने बहुत क्लियरली कहा है कि वी शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई एंड नर्चर द मीन्स एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल चाइल्ड, और एक बच्चे के जो उसकी जो खासियत है, हर बच्चे में कुछ ना कुछ खासियत होती है, तो हमारे अंदर शिक्षकों के अंदर, पेरेंट्स के अंदर ये क्षमता होनी चाहिए कि कैसे उसको हम आइडेंटिफाई करें और नर्चर करें। और फिर आगे कहता है कि पूरे सिस्टम में इस चीज को कैसे फोस्टर किया जाए, ये एनईपी ने प्रिंसिपल लेके चला है। अब बच्चों को जैसे देखिए, एक छोटी छोटी बात है, हम कह देते हैं बेटा तुम मेडिकल में बैठ जाओ, तुम इंजीनियरिंग में बैठ जाओ, ठीक है। आपको मैं बताऊं एक बार, मैं आपको बताता हूं फैक्ट, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन जो आप जानते होंगे, तो जब हम हेड थे तो हमने एक बड़ा इनोवेटिव काम किया कि पहली बार हमने नर्चरिंग सोशल साइंसेज में किया। बच्चे सेलेक्ट होके आए, तो नॉर्मली हम आईआईटी के साथ और इंजीनियरिंग, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के साथ, तो हमने एक बार ह्यूमैनिटीज का अपना एनसीईआरटी का डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट किया, वो तैयार हो गया, और ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस में हमने नर्चरेंस के लिए बच्चों को 10th करके जो आए थे, बच्चे जरूर साइंस में खूब अच्छे थे, स्कॉलस्टिक एबिलिटी अच्छी थी, लेकिन उन्होंने जब ह्यूमैनिटीज का नर्चरेंस का किया कि अरे हमें तो पता ही नहीं था कि हिस्ट्री में भी इतना एक्सप्लोरेशन है, हमें तो पता नहीं है कि हम सोशल साइंस पढ़ के भी इतना ज्यादा हम आगे बढ़ सकते हैं और सोशल कॉज के लिए सोच सकते हैं, अपने साइंटिफिक टेम्पर और कंप्यूटेशनल स्किल को यूज कर सकते हैं। तो अब ये तो बच्चों तक अगर हम नहीं ले जाएंगे तो फिर बच्चे कैसे जानेंगे? तो यहाँ पे थोड़ा रोल आ जाता है पेरेंट्स से बढ़ के सिस्टम का भी कि कैसे बच्चों को हम इन सब चीजों से साक्षात्कार करवाएं और उनको इन बातों से सरोकार हो कि हम एजुकेशन को अगर हम एक सोशल पर्पस लेके चलते हैं, लाइवलीहुड तो है ही है, प्रोफेशनल परस्यूट तो है ही है, लेकिन अगर लाइफ में सोशल पर्पस लेके भी चलते हैं तो हमें बहुत कुछ जानना और सीखना है। खाली एग्जाम में पास करके ही, नंबर ला के ही हम कुछ नहीं पा पाएंगे जीवन में, ये उनको बताना चाहिए। आपने इस पिछले 15 मिनट में इतने सारे दूसरे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स की बात रखी, और निश्चित तौर पर वो किताब के जरिए कतई नहीं सीखे जा सकते, वो एक परिवेश का योगदान हो सकता है, जहां रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में आप कैसे रेस्पॉन्ड करते हैं, वो आपका सोचने का तरीका बताता है, और वो डेफिनेटली इम्बाइब करते हो जब आपके आसपास के लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं। जैसे आपने एम्पैथी की बात कही, सिंपैथी की बात कही, प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग की हम बात करते हैं। सॉल्यूशन तो बाद में आएगा, पहले प्रॉब्लम को समझना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात होती है, और सही तरीके से समझ लिया तो निदान तो बहुत चुटकियों में आ ही जाता है। तो ये जो कि सामाजिक परिवेश से आती है, जिसमें परिवार है, समाज है, आस पड़ोस है, शिक्षक हैं, सभी लोगों की भूमिका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं जुड़ी होती है। इट इज नॉट मियरली अबाउट फाइनल परफॉर्मेंस और एक ग्रेड कार्ड आपने ले आए और यू आर क्लेमिंग, बिकॉज लाइफ स्किल्स आपकी एक्वायर नहीं होंगी। और यही कारण है कि हम देखते हैं कि अच्छे परफॉर्मर्स भी लाइफ में फेलियर साबित होते हैं, या लाइफ से विमुख होकर के सुसाइड जैसा रास्ता अख्तियार करते हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये बात स्थापित। जी देखिए, आपने जो अभी कहा, बड़ी मतलब अखबार में देख रहा था, और किसी एक स्थान, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, आप खूब समझ रहे हैं, मैं समझ गया बात आपकी, और वहाँ पे बच्चों के सुसाइड केसेस का नंबर था कि पिछले 2 महीने में हो रही है। ये बहुत दुखद बात है। आप देखिए, हम ह्यूमन रिसोर्स इस कंट्री के, और हम इसको बहुत ही अच्छा मानते हैं। हमारे देश के जो बच्चे हैं, वो चाहे जितना भी नंबर लेके आ रहे हैं, बट वो एक ऐसे सोसाइटी में बचपन बिता रहे हैं
जहाँ वो डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट लैंग्वेज देखते हैं और उनके में एक फिर भी एक फीलिंग होती है कम्युनिटी में रहने की। और उसमें और वैसे में मेरा ये कहना है कि अगर बच्चे का मन नहीं है तो उसको नहीं फोर्स हमें करना चाहिए। फोर्स करना चाहिए, अगर मैं सीधे सीधे और बहुत सामान्य शब्दों में कहूँ। और हमें तो बहुत दुख होता है। अब ये किसका इसका दायित्व है, अब हम सबकी को सोचना है। नहीं, मैं आपको एक रियल इंसिडेंस बताता हूँ शहर का भी। बीच में लगभग 5-6 साल पहले आइए हमने सरकार से भी बातचीत की कि इस विषय पर कुछ ना कुछ एक मोटा मोटा फ्रेमवर्क बनना चाहिए जिससे इसकी रोकथाम हो सके। उसके बाद गवर्नमेंट ने भी कुछ मेडिकल केयर की और मेंटल हेल्थ केयर के लिए कुछ फॉर्मेट्स मैकेनिज्म्स डेवलप की। एक सुसाइड नोट मिला, उसमें उस बच्चे ने लिखा कि आज मेरा जन्मदिन था और मेरे फादर रोज शाम को फोन करते हैं, मुझसे सिर्फ यही सवाल पूछते हैं कि पढ़ाई कैसी चल रही है। उन्होंने आज तक ये नहीं पूछा खाना खाया कि नहीं खाना खाया, हाउ आर यू फीलिंग। आज मेरा जन्मदिन था और आज के दिन भी उन्होंने मेरे जन्मदिन के विषय पे कोई बात ही नहीं की और सिर्फ उन्होंने हमेशा की तरह वही पूछा कि मैंने बड़े मेहनत से और उधार लेके और बड़े जतन से तुझे पढ़ने भेजा है और आई एम स्पेंडिंग ए लॉट ऑन योर स्टडीज। So he couldn't handle this pressure. Forget about academic pressure. This Yes, yes, emotional pressure was a burden, great burden on him, and he committed suicide for that matter. yes, yes, yes. This is So very मैं true. तो आप प्रोफेसर श्रीधर आपने बिल्कुल सही कहा और ये मुझे लगता है कि एग्जामिनेशन तो बहुत आगे की बात है। हम जड़ों पे हम काम कर लें कि जहाँ सबसे पहले सामाजिक जो दायित्व है, पेरेंट्स का जो दायित्व है कि आइडेंटिफाइंग कि ईश्वर ने क्या उसे बना के भेजा है या क्या एट्रीब्यूट्स दिए हैं, हम उसको समझ करके उसकी उस दिशा में मदद करें। और नीम की दातुन भी यूएस में $10 में मिलती है। बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही वक्त दिखाती है। ये बातें बताती है कि आप जो भी हैं, अगर आप यूजफुल हैं तो डेफिनेटली आपके लिए जगह मिलेगी समाज में, बिल्कुल आपकी यूएसपी बनेगी। बिल्कुल। यूजुअली जब हम एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो बहुत कुछ इकट्ठा कर लेते हैं पढ़ने के लिए, है ना। सो देयर इज अ फ्रेज टर्म्ड एज डूइंग व्हाट मैटर्स। आई थिंक ये एक अगर हम इस सिद्धांत को फॉलो करेंगे तो शायद कुछ ईज आउट हो सकता है व्हेन इट कम्स टू एग्जामिनेशन एंजाइटी। So you see, doing what matters may be different for different person, but if I tell based on my own experience as a student or experience of my children, I see that पहली बात तो अगर जैसे आप किसी भी कोर्स में किसी साल में आपने दाखिला लिया तो शुरू में आप पहले चीज़ों को थोड़ा समझने की कोशिश करिए। आप बहुत सीरियस होइए कि जब आपको वो ट्रांजैक्ट किया जा रहा है वो पार्ट, वो टॉपिक, तो कोशिश करिए कि अगर आप पहले से थोड़ा उसको पढ़ के जा पाएँ तो, और बहुत ध्यान से सुनिए आप और समझने की कोशिश करिए। और जब एग्जामिनेशन के पहले आने तक आपके जो कुछ पोर्शन आपको बहुत अच्छे लगते हैं जिसमें आपको कॉन्फिडेंस भी है, फिर उसको आप बहुत ही थॉरोली समझते हुए पढ़ लीजिए। और एक ऐसा विषय है जिसपे कि मैंने ऐसा महसूस किया है कि कई बार ऐसी फीलिंग आने लगती है कि अरे हमने सब पढ़ा, याद था, फिर भूल गया। मैंने ये महसूस किया है और बच्चे भी है जैसे कभी बोलते हैं, तो मैंने ये देखा है कि अगर उन्होंने पहले से शुरू से अगर चीज़ों को समझा हुआ है तो अगर उनको भूल भी रहा है तो फिर वो याद आ जाएगा। और दूसरा एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज अभी एनसीईआरटी जिस संस्था से मैं जुड़ा हुआ हूँ और राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने भी अब उस चीज को बहुत इम्फेसाइज किया है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड टीचिंग लर्निंग पे ध्यान देना चाहिए। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड टीचिंग लर्निंग और लर्निंग आउटकम ये इसमें ये है कि बच्चे को भी समझना चाहिए, टीचर को भी समझना चाहिए, स्कूल को भी समझना चाहिए कि बच्चे को हमने एक चैप्टर पढ़ाया और चैप्टर के सवाल कर दिए, ये कॉम्पिटेंसी इतना ही नहीं लाएगा। कॉम्पिटेंसी में बच्चे को इस लेवल तक हम पहुंचा दें कि उसका जो नॉलेज है उसको रिकॉल तो कर ही सकता है, अप्लाई भी कर सकता है, नोन सिचुएशन भी कर सकता है,
बट बच्चा अननोन सिचुएशन में भी अपने नॉलेज को अप्लाई कर सकता है। तो उस कॉम्पिटेंसी को लाने के लिए देखिए ऐसा होता है कि कई बार हम समझ लेते हैं कि ये कॉम्पिटेंसी टीचर ही लाएगा, किताब ही लाएगा, स्कूल ही लाएगा। बच्चे का खुद भी एफर्ट कॉम्पिटेंसी करने में होता है। जैसे आप कई बार सुनते हैं, हम डॉक्टर राधाकृष्णन जी के लिए सुनते हैं कि वो पेड़ों के सामने खड़े होके बोलते थे, जी जी ग्रेट ओरेटर, बट हम सुनते हैं। अब कोई कहेगा अरे ये क्या मतलब हुआ पेड़ के सामने खड़े होके बोल रहे हैं। बट आई टेल यू, मैंने हिंदी मतलब हिंदी भाषा में ही मेरा शिक्षण अधिगम हुआ, लेकिन अंग्रेजी की जब आवश्यकता आई तो हम लोग को भी ऐसा ही हुआ कि अब जैसे कहीं से पढ़े तो फिर अब वो पहले ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, बोल बोल के प्रैक्टिस कर रहे हैं, तब जाके कहीं हिम्मत आएगी किसी के सामने बोलने की। मैं जी कह रहा जी हूँ तो what I'm trying to say, competency is a function of teacher's effort, the kind of practice that is being made in the school, but most importantly, it is a factor of the effort of the child also, कि अपनी वो फैमिलियरिटी कैसे बढ़ा रहा है उस सब्जेक्ट से। तो अगर मान लीजिए बच्चे को ये सोचना चाहिए कि एक फिजिक्स का क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, तो थोड़ा टफ वाला क्वेश्चन है, छोड़ो हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन कम से कम हम जरा उस प्रॉब्लम को समझें, जो कर पा रहा है उससे हम ये डिस्कस करें कि अरे भाई कैसे इसको किया जाता है, और कितना अच्छा हो कि अगर 2-3 बच्चे मिलकर उस प्रॉब्लम को समझे। पीयर लर्निंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। And there are certain good examples where the child is able to clarify the concept more efficiently amidst the peers than the teacher, and teacher should be there acting as a facilitator. तो लेकिन अपना इंटरेस्ट भी दिखाना पड़ेगा कि हमको सीखना है, और शुरू से ही, ऐसा नहीं कि एग्जामिनेशन यूजुअली ट्यूटोरियल क्लास में यही होता है, या हम्म। पीयर लर्निंग जो है, खासतौर से न्यूमेरिकल्स में हम देखते हैं कि किस तरह से स्टेप्स को स्टेप्स अटेम्प्ट करते हैं या किसी स्टेप को ओमिट कर सकते हैं। राइटली सेड, पीयर लर्निंग प्लेज अ वाइटल रोल, जहां आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज का चलन बढ़ गया है। पेरेंट्स समझते हैं कि डेस्क पे बैठ जाओ और कंटेंट ला करके दे दो उन्हें, किसी बैसाखी का सहारा या कोचिंग का सहारा उन्हें दे दिया, और यू जस्ट डू द डेटा ट्रांसफर and you vomit it and you will get the school हार्ड डिस्क है उसमें, इधर से ट्रांसफर कर दो, वो चला गया। तो ये एक जो क्रूड वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द लर्निंग प्रोसेस है, वो बिल्कुल भी काम नहीं करता, रादर ये एडवर्स इफेक्ट करता है। और पीयर लर्निंग आई थिंक तमाम आईआईटीज में भी इस तरह की जो है सीनियर, आपके जो इमीडिएट सीनियर्स होते हैं उनके साथ आपको कनेक्ट करते हैं, बैच ट्यूटर्स बनाते हैं। उसका उद्देश्य यही है कि एक इजी वे में, एक सटल वे में आप सीख सकें। जो आपने जैसे राधाकृष्णन जी की बात कही कि पेड़ के सामने बोला करते थे, और ये मेरा निजी अनुभव भी है कि बच्चे खुद बड़े इनोवेटिव तरीके निकालते हैं सीखने के लिए। मुझे याद है स्कूल के समय की बात है, मैं हिंदी न्यूज़ पढ़ता था सुबह जब स्कूल में असेंबली होती थी, और मेरे एक मित्र को अंग्रेजी न्यूज़ पढ़ने के लिए कहा गया। और उन दिनों टीवी इंग्लिश न्यूज़ मतलब इतनी आसानी से देख पाना संभव नहीं हो पाता था। मैं क्या करता था, जब हिंदी में समाचार शाम को आते थे तो लिख लेता था जल्दी जल्दी कुछ, फिर स्टोरीज को एलेबरेट कर लेता था। तो अब सुबह जब अंग्रेजी का अखबार जब आता था, तो अब उसको पढ़ करके सब समझ पाना और वो बोल पाना, स्क्रिप्ट करना पढ़ना मुश्किल होता था। तो वो क्या करता था कि जो अंग्रेजी में टाइटल्स दिए गए हैं उनको हिंदी में लिख देता। टुडे, ट पर छोटे ओ की मात्रा, टुडे प्राइम मिनिस्टर, और हिंदी स्कूल था, हिंदी मीडियम का स्कूल था, तो इतना फ्लुएंसी भी नहीं थी, मतलब फ्लो में नहीं पढ़ सकते थे, पढ़ना और बोलना तो आता था। तो उसने हिंदी में उसको लिखा, और क्या बिल्कुल फ्लो के साथ, जैसे वो हिंदी भाषा में बोल रहा हो, और उसने बिल्कुल बारिश की तरह झरझर करते हुए अंग्रेजी में न्यूज़ पढ़ दी। सो एवरीबॉडी वाज अमेज्ड कि रातों रात तुमने इतनी जबरदस्त अंग्रेजी कर ली अपनी। फिर उसने कहा कि भाई ये लेट मी बी ऑनेस्ट, मुझे सिर्फ भाषा है, मुझे अपनी बात आपको कहनी है जिसमें आपको सुनाई दे रहा है कि मैं अंग्रेजी के शब्दों को अंग्रेजी में बात कर रहा हूँ, लेकिन लिपि मेरी हिंदी में ही है। सो किसी ने नहीं बताया। आपने कहा ना कि हर बच्चा अपने आप रास्ते ढूंढता है, और ये एक ऐसा एग्जाम्पल, ऐसे सैकड़ों कहानियां, सैकड़ों उदाहरण हो सकते हैं। बहुत ही उदाहरण है, देखिए, लेकिन उस बच्चे ने प्रयास तो किया। अब इसी तरह अब देखिए, इसमें बड़ी आजकल के समय में हम बहुत ही डिबेट में, अननेसेसरी डिबेट में भी पड़ जा रहे हैं, खास करके रोट मेमोराइजेशन को लेके। इट्स अ वेरी
टची टॉपिक, बट आई एम टेलिंग यू, हमें जैसे साइन कॉस थीटा, ठीक है ना, जी जी तो मुझे याद है मैं क्लास 8th में था और मेरे ब्रदर इंजीनियरिंग कर रहे थे और मुझे साइन कॉस टेन हिंदी मीडियम का था और उस समय वो एक किताबों में जैसे वो लिखा तो साइन SINE और ऐसे करके, लेकिन वो मेरे को बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज एंड बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो एक मेरे ब्रदर आए, फिर उन्होंने कहा देखो तुम्हें मैं बताता हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, है ना। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो मैंने सब, मेरे को बड़ा बल्ब जला मेरे दिमाग में, फिर मैंने लिखा उसको पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, और फिर नीचे, और फिर उसको मतलब दैट द फर्स्ट fraction means was sine then cos and then sine divided by cos tan. तो मैं कह रहा हूँ कि इस तरह से डिवाइस करते थे पहले। और इसी तरह जैसे मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बता दूं, एक आप सुन के मतलब शायद कितना सरोकार रखेंगे, टेबल्स को लेके, पहाड़ों को लेके जी जी बिल्कुल। एक बहुत बड़ा द्वंद है, पहाड़े रटने चाहिए नहीं रटने चाहिए। अब पहाड़े अगर मान लीजिए, पहली बात तो देखिए स्मृति श्रुति हमारी एक परिपाटी रही है जी ना। जी हम श्रुति से कितना हमारे यहाँ जनरेशन्स में चलता था। तो अब अगर मेमोराइजेशन मतलब जैसे टेबल्स हैं, कुछ किसी को बहुत ज्यादा अगर उसे याद है, अपने मदर टंग में याद है, तो वो बड़ी तेजी से हिसाब करता है। मेरे फादर थे, उनको आधा पौना सवैया का हाँ टेबल यार याद हाँ था, बिल्कुल। और ही वॉज ओनली PUC, प्री यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट, 11th मतलब पहले जी होता जी था। जी पहले 11th था। और मैं पोस्ट ग्रेजुएट इन स्टैटिस्टिक्स, PhD इन स्टैटिस्टिक्स, मैं देखता था साहब बड़ा तेज करते थे। और आपको हाँ, कैलकुलेटर की जरूरत पड़े वो भाई वो जमा मतलब कर इसको दे। बड़ा तेज करते थे। अब इसको मैं क्या बोलूं, अब इस पे कोई डिबेट करे कि नहीं साहब मेमोराइजेशन नहीं। मेरा ये कहने का मतलब है, देखिए, इफ यू आर एबल टू retain something in a mind, nobody is forbidding you in from clarifying the concept later on, लेकिन जस्ट हम कॉन्सेप्ट क्लैरिफाई कर दें और फिर रिटेन न करें, बट ये बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स चीज है, मैं बताऊं आपको। इसीलिए मैं कहता हूं कि बच्चों में अगर पेरेंट्स देखें, टीचर्स देखें, कोई बच्चा होता है इतनी क्रिटिकल थिंकिंग होता है, इतना डीपर जाके सोचता है, और उसकी इतनी फाइन लेवल की थिंकिंग होती है, लेकिन हो सकता है वो याद नहीं रख पाता हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें उसे कहना चाहिए कि वो बेकार है, क्योंकि उसकी जो डीप और क्रिटिकल थिंकिंग है ना, और प्रॉब्लम सॉल्विंग है, एबिलिटी है, वो बहुत हेल्प करेगी। किसी ग्रुप में अगर वो बच्चा एक हो, सारे बच्चे फटाफट ये कर रहे हो कि हाँ चलो ये ऐसे है, लेकिन उसकी डीप थिंकिंग बहुत हेल्प करेगी। तो ये सारी चीजें, असेसमेंट रिफॉर्म इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, ठीक। कि कैसे असेसमेंट करना है। और बिल्कुल बड़ा बड़ा चैप्टर है असेसमेंट एंड एवेल्युएशन जो है। जी रिफॉर्म मैं इस पर अभी आऊंगा, लेकिन दैट, वहां जाने से पहले, उस पर जंप होने से पहले, कमिंग बैक टू द पॉइंट, एग्जामिनेशन की बात चल रही है और अभी फरवरी का मंथ है और जून तक कुछ ना कुछ एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स लिख रहे होंगे, चाहे वो अपने स्कूल एजुकेशन के एकेडमिक एग्जामिनेशन हो या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन टू गेट एंड एडमिशन इन कॉलेज एजुकेशन। एक फीलिंग आती है, चोर का मन, हर एक के मन में हल्का सा चोर होता है, कॉपी, और वहीं हमारा एक कॉन्शियस मन है, वो रोकने की कोशिश करता है, या फियर कह लीजिए, नॉट टू कॉपी। तो ये जो एक द्वंद है, कॉपी और नॉट टू कॉपी, या एक सुलभ प्रलोभन है कि कोई देख नहीं रहा है, कुछ नहीं होता है, मैं कर लूंगा और बच जाऊंगा, निकल जाऊंगा। और बहुत सारे लोग निकल भी जाते हैं, ऐसा नहीं कि वो पकड़े जाते ही हो, और कुछ लोग दुर्भाग्यपूर्ण पहले अटेम्प्ट में ही कहीं ना कहीं फंस जाते हैं और डिजास्टर होता है करियर के लिए। ये बड़ा चैलेंजिंग इशू है। मैं चाहूंगा इस पर आप एक लंबे समय से, आपने लगभग 27-30 वर्ष हो गए आपने इस क्षेत्र में जड़ों में जाके आपने काम किया है, नजदीक से समस्याओं को देखा है। इस नोशन से कैसे इसको एड्रेस कैसे किया जाए? देखिए, इस नोशन को एड्रेस करना मेरे हिसाब से बहुत सिंपल इस तरीके से है, copy or not to copy, if one is clear that how far it is going to help, तो ये बहुत हेल्प नहीं करेगा। लेकिन मैं आपको यही बता रहा हूं कि यहाँ पे फिर वही बात आ जाती है कि कई बार
सिस्टम ने ऐसा बना के रखा हुआ है, जब तक मार्क्स को इंसेंटिवाइज किया जाएगा, ये स्वतः आदमी के अंदर। अब जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में CUCT हो गया, पहले तो जी। मार्क्स बेसिस पे था, तो शायद धीरे धीरे ये चेंज करे। तो लेकिन सिस्टम जब तक रिस्पॉन्ड करे, उसके पहले इंडिविजुअल को ये सोचना चाहिए कि देखो, कॉपी और नॉट टू कॉपी ठीक है, मार्क्स थोड़ा अगर आ गया, लेकिन बहुत दिन तक ये हेल्प करने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से शायद यही भाव जो है, अगर जितना ग्रह होता जाए व्यक्ति के अंदर, उस छात्र के अंदर, तो शायद इसका उत्तर मिलेगा कि नहीं भाई साहब, हमें कॉपी करने से कोई फायदा नहीं है। अदरवाइज तो वो ह्यूमन नेचर है, बालक मन है, वो तो जरूर उसके लिए वो होगा, बट इसका कोई फायदा होने वाला नहीं है, मैं आपको बताऊं। और इसमें तो बहुत ही द्वंद आता है वो छात्रों के सामने कि साहब वो देखिए ना, उनका इतना मार्क्स आ गया, हम क्लास में वो करते हैं, ये द्वंद आता है, मैं जी मानता जी हूँ। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे यही है कि बच्चे को समझाना है साहब, ये फायदा नहीं करने वाला है आगे जाके। सही बात है, अल्टीमेटली जो वजह है वो हम्म, यही है ना कि कुछ नंबर ज्यादा आ जाएंगे। हाँ, बस यही है। ये लोग ही है जो आपको कंपेल करता है या टेम्प्ट करता है कि मैं कुछ ऐसा कर कागज पे चिट बना otherwise लूं, फायदा कुछ नहीं होने वाला, और कोई। एडवर्स हुआ अगर आप पकड़े गए, तो हाँ, वो आत्मग्लानि का जो भाव है, या और क्या। एक लीगल इशू भी हो सकता है इसमें कहीं ना नहीं, कहीं। लीगल इशू तो होगा ही होगा। आप सोचिए ना, आजकल ये एकेडमिक उसमें भी बच्चे आगे भी के बारे में भी सोचे, प्लेगरिज्म, ये सारी चीजें जो हैं, तो ये शुरुआत से ही छोड़ देना बहुत जरूरी है। और इसमें मैं यही कहता हूँ कि इस सिस्टम में भी धीरे धीरे ये चीज होना चाहिए कि आप मार्क्स को ज्यादा इंसेंटिवाइज मत करो, एडमिशन मार्क्स के बेसिस पे ऐसे ये। तो और फिर मैं ये भी कहता हूँ, देखिए मैं एक स्टैटिस्टिक्स का छात्र रहा हूँ। देयर आर मेनी थिंग्स इन लाइफ विच आर गवर्न बाय प्रोबेबिलिटी। आप कहीं ना कहीं मिस कर देंगे, कहीं ना कहीं मालूम चला कि आप अपने से ज्यादा काबुल वालों से भी आगे निकल गए, ठीक है ना। चांस इज ऑलवेज देयर, चांस ऑलवेज प्लेज अ फैक्टर। तो लाइफ में इतना ज्यादा बॉदर नहीं करना चाहिए मार्क्स के लिए, उसके लिए मैं तो बार बार यही बच्चों को कहता हूँ, जो भी मेरे से टकराता है, कि यू सी देयर चांस ऑलवेज प्ले a factor in our life. So we should not be that much we should not try to be that much definite in our success, कि हम इतना करेंगे तो ये हो ही जाएगा, ये करेंगे तो ये हो ही जाएगा। तो ये हम कर। कैलकुलेटिव अप्रोच की बजाय, और हाँ, अंततः जैसे हम देखते हैं कि ईश्वर ने, हम अगर जैसे अभी आपके ऑफिस के आसपास कोयल की आवाज आ रही थी, मैं वो सुनकर के एकदम मैं विजुलाइज करने लगा कि आपका ऑफिस कहीं कुछ घने एरिया में होगा जहाँ हाँ, कोयल बहुत बहुत ही रहती है। सीरीन प्लेस है या। जी जी। तो जीवन जो है अंततः आनंद से गुजारने के लिए है, और अपने आप में कुछ ऐसे गुण डेवलप करना है जो आप बेहतर कर सके, आप जो कल थे उससे आज बेहतर हो, और अल्टीमेटली आपके आसपास के लोगों को आपसे कुछ लाभ मिल सके। आप देखें, पशु हो, पक्षी हो, फल हो, वो फल, वृक्ष फल लगाता है दूसरों के लिए, गाय दूध देती है दूसरों के लिए। हम किसी भी जीव को देखें, वो हमेशा जो भी कुछ उसका आउटकम है, वो अल्टीमेटली दूसरों को सर्व कर रहा है। ऑफ कोर्स वो खुद के सर्वाइवल के लिए थोड़ा बहुत कुछ करता ही है, हम भी नेचर है। आई थिंक ये कहीं फिलोसफी जब तक हम इम्बाइब नहीं करेंगे, इस पर सोचेंगे नहीं कि हम अल्टीमेटली ह्यूमन बीइंग है और हमारा रोल क्या है इस पूरी जीवन की यात्रा में। हम इस तरह के जो आपने कहा कि कैलकुलेटिव अटेम्प्ट्स, हमें बार बार इस तरह की शॉर्टकट्स के लिए अटेम्प्ट करते रहेंगे, ये जगह छोड़ोगे तो दूसरी जगह कहीं ना कहीं आप अटकोगे। तो अल्टीमेटली एम जो है टू लिव लाइफ विद जॉय एंड एक्सप्लोर योरसेल्फ फॉर बेटरमेंट। स्कूल, मैं मानता हूं कि स्कूल वो प्लेस है जो घर के बाद आप इमीडिएटली थोड़ा डिसिप्लिन सीखते हैं, और घर की छत्र छाया से बाहर निकल के आप खुद को ढूंढने का प्रयास शुरू करते हैं, जहां आपको इमीडिएटली कोई नहीं टोक रहा है, देख रहा है कि आप क्या कर रहे हो, या ऐसे ही करना है, ऐसे कोई टोकने वाला नहीं है। तो वो स्पेस भी है, वो ऑटोनोमी भी है, और आप ट्रायल एंड एरर मेथड से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश भी करते हो। स्कूल को हमने प्लेस बना दिया है प्रूविंग का ना। आप इवन बैचेस में भी देखें, एबीसी क्लास में सेक्शंस होते हैं कि भाई ज्यादा परसेंटेज वाले लोग जो हैं वो डिस्क्रिमिनेशन उसमें आएगा, फिर अगले परसेंटेज वाले में वहां है, फिर तीसरे परसेंटेज वाले में यहाँ है। इस तरह का एक डिस्क्रिमिनेशन का माहौल सभी बन गया है। तो स्कूल इज अ प्लेस ऑफ लर्निंग एंड और स्कूल इज अ प्लेस ऑफ प्रूविंग। योर टेक ऑन दैट? You see, in fact, school is intended
to be a place of learning. But as you said that in the common parlance now, what we are seeing that school is taken as a place of proving. As you just said that there are many sections and all. But here often the schooling now functions with a commercial motive also. We should be ready to agree with that. I agree. I and agree. accept that. But then again, I would say that parents should be made quite aware. I'm talking in the term of India. और आप देखिए शहरों में आपने एक चीज महसूस किया होगा कि बच्चे के एडमिशन लेने से शुरुआत जब होती है, अरे साहब इसी स्कूल में, अरे साहब इसी स्कूल में, अरे भाई ऐसा नहीं है कि उस स्कूल के सारे तीरंदाजी हो गए और वो कुछ कर लिए। सामान्य पृष्ठभूमि, सामान्य स्कूलों से पढ़े हुए बच्चे, तो अब आप बच्चे को साहब आपने उस ऐसे स्कूल में डलवा दिया, वो बस से जा रहा है। मैं दिल्ली का अगर एग्जांपल लूँ तो 46-45 की भी 44 का भी टेम्परेचर हो जाता है, उसमें बस से वो जा रहा है बेचारा, और बस से आ रहा है, कभी 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर। बच्चा बोल नहीं पाएगा, लेकिन उसके ऊपर कोई ना कोई फर्क असर तो पड़ ही रहा होगा ना, Definitely. है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा वही फिर मैं कहूँगा कि पेरेंट्स का रोल है कि आप बच्चे को ये बोलो कि जाओ बेटा लर्न करो, ये करो, और एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। परफॉर्मेंस की भी बात थोड़ा-थोड़ा हमें ये भी समझना चाहिए कि बच्चों को समझाना चाहिए, देखो बेटा बच्चे परफॉर्मेंस भी करना है, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर अनड्यू मेंटल स्ट्रेस, मेंटल डिसबैलेंस, और ये चीज़ें नहीं करना है। आप वहाँ गए हो सीखने के लिए, आप वहाँ पे पढ़ो, सीखो, कैसे लोगों के साथ बिहेव करना है सीखे, कैसे तुम्हें अपने को डिफेंड भी करना है ये भी सीखो, कैसे आपको बात करना है, चीत करना है, कैसे आपको रेस करना है वॉइस, ये भी सीखो। तो ये सारी चीज़ें स्कूल में सिखाना चाहिए। और मुझे तो नहीं लगता कि स्कूल एज ए स्पेस फॉर प्रूविंग करके कोई बहुत फायदा होने वाला है। और जो लोग कर रहे हैं, धीरे धीरे बदलाव भी आ रहा है, लोग समझ रहे हैं, क्योंकि आजकल देखिए स्किल्स अगर नहीं है, नोबडी इज गोइंग टू गेट अ जॉब सिंपली बाय द वर्च्यू ऑफ हिज और हर डिग्री, बी इट फ्रॉम आईवी लीग इंस्टीट्यूशन, वॉट एवर बी द इंस्टीट्यूशन। अपने खाली डिग्री से कोई कुछ नहीं पा रहा है, स्किल होना उसमें जरूरी है, और उसमें कॉम्पिटेंसी, एबिलिटी टू लर्न फर्दर, एबिलिटी टू रिलेट विद अदर्स, ये जब तक नहीं है तो फिर वो नहीं कुछ पाएगा। तो ये सारी चीजें, अब जैसे इस तरह के प्रोग्राम्स का भी एक रोल है, जैसे आप अभी कर रहे हैं, जो बच्चे सुनेंगे तो शायद उसको थोड़ा सोचेंगे, डिस्कशन होगा, तो वो तो करेंगे। अब आप क्या समझते, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम ले ऑफ्स की बात कर रहे थे, अब जो लोग उससे इम्पैक्टेड हैं, क्या है, वो जीवन नहीं जिएंगे, हो सकता है उससे ज्यादा सक्सेसफुल कुछ एंडेवर में वो चले जाएं, है ना। तो कभी ना कभी तो उन्होंने खूब अच्छा परफॉर्म करके किया, जब मालूम चला कि किसी में कहीं जॉब पाया होगा, ऐसी बड़ी नामी गिरामी कंपनियों में, तो सभी ने सेलिब्रेट किया होगा, ठीक है ना, उसने तो प्रूव किया। लेकिन आज उसके सामने ये सिचुएशन आ गई, तो फिर वो लाइफ तो लीड करेगा ही, और हो सकता है ज्यादा हैप्पीली लीड करे किसी दूसरे एंडेवर में। तो उसने जो लर्निंग की होगी पहले से, उस पे ही वो आगे बढ़ेगा। तो लाइफ में वी गेट मेनी अपॉर्चुनिटीज टू शो योर सक्सेस, योर एबिलिटी। तो वही। जी जी। नाउ बैक टू द पॉइंट, जो आपने एक इम्पोर्टेंट बात कही थी, evaluation assessment. So present practices of evaluation or assessment and NEP's guideline on this particular topic. You see, the present system as of now, because there are a number of boards, more than 50 boards across the country. So the boards lay emphasis on memorization and means simply recalling the fact.
और जैसे उसमें मार्किंग में सब्जेक्टिविटी भी हो जाती है, इन्वॉल्व होती है, क्योंकि उसमें डिपेंड करता है कि अगर आप किसी ने क्वेश्चन सेट किया तो अब उसको अगर उसने प्रॉपर उसका रूब्रिक्स नहीं दिया कि आंसर में ये चीज है तो इस पे इतने मार्क्स और ऐसे करके, तो कहीं कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो सब्जेक्टिविटी भी आ जाती है। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पिटफॉल्स भी हैं, ये सारी चीजें हैं। लेकिन एनईपी जो कह रही है वो कह रही है कि 360 डिग्री इवैल्यूएशन होना चाहिए, स्कूल बेस्ड असेसमेंट इवैल्यूएशन होना चाहिए, पीयर असेसमेंट होना चाहिए, और असेसमेंट जैसे होता है ना, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, राइट? So assessment of learning is, that is what terminal examination, which is quite prevalent as of now. But assessment for learning, that goes through the process. ठीक है ना, कि अभी चल रहा है, देखा, फिर बच्चे को अच्छा, इस बच्चे को इस एरिया में ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, इसमें अच्छा है तो अच्छा इस पे ध्यान दे दो, असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट एज लर्निंग इज स्लाइटली हायर, means conceptually, but that is very important. जिसमें कि आप बच्चे हैं, बैठे हैं, जैसे मैंने पीयर लर्निंग की बात कही आपसे, और पीयर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज स्कूल में देनी है, और बच्चे को देखना है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, टीचर दूर से ऑब्जर्व कर रहा है कि हो सकता है कि वो कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स में कम हो, लेकिन अफेक्टिव और साइकोमोटर में बहुत आगे हो, तो उसको हमें लिखना चाहिए, हमें उसके कहीं उसके रिकॉर्ड में कहीं। तो एनईपी ने इसी बात को कहा है कि आप असेसमेंट को स्ट्रेस फ्री करिए, और इसमें ऐसा ना करिए कि एक बार हो गया और उसके बच्चे को एकदम डिजास्टरस हो जाए अगर वो किसी वजह से मिस कर जाए, ये कर जाए। तो इट शुड बी स्पैन्ड अक्रॉस द होल ईयर और सेमेस्टर। तो ये सारी बातें एनईपी ने किया। लेकिन देखिए, ये सारी बातों में जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण वो हो जाता है कि कैसे टीचर ट्रेनिंग हो और कैसे ये चीजें सिस्टम में जाए सही तरीके से। ये सारे हम एजुकेशन की जितनी बातें करते हैं उसमें टीचर प्रिपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो टीचर प्रिपरेशन के समय ही ये सारी चीजें कैसे पहुंचे, ग्राह्य हों उस टीचर को जो कि फ्यूचर टीचर होने जा रहा है, टीचर प्रिपरेशन प्रोग्राम में है, बीएड एमएड कर रहा है, तो ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। बट दीज थिंग्स आर देयर इन एनईपी, and we are coming out with this kind of reform. We will be coming out in the curriculum framework also. जी, अभी शायद फर्स्ट ड्राफ्ट करिकुलम फ्रेमवर्क का आ चुका है। That is for the foundational stage. As you know that the pre-primary education has been brought for the first time in country in the formal fold of school education. तो हमें 4 करिकुलम फ्रेमवर्क बनाना है। एक अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का, जिसको अभी हमने फाउंडेशनल स्टेज करके वो हम लाए हैं, जी, और स्कूल एजुकेशन का बनाना है, और टीचर एजुकेशन और वोकेशनल एजुकेशन का बनाना है। वोकेशनल एजुकेशन इज आल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, विदेशी जो हम धरती पर जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं, हम देखते हैं कि चाहे वो 10वीं पढ़ के निकले, 12वीं पढ़ के निकले, यू नो, इजी एग्जिट इजी एंट्री पॉलिसी भी उनके यहाँ होती है, और दे डू वेल इन देयर स्फीयर। 6 महीने काम करते हैं, फिर बाकी समय अपना लेजरली कुछ नई चीज सीखते हैं, भ्रमण पर निकलते हैं। मतलब मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो, मैं नकल की बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उनकी बात से सीखने की बात जरूर कह रहा हूँ कि स्कूल एजुकेशन में किस तरह से हम वोकेशनल एजुकेशन को ग्रेजुअली इंड्यूस कर सकते हैं, और अल्टीमेटली उसकी सोसाइटल एक्सेप्टेंस आनी चाहिए। हाँ, वो आनी चाहिए, सोसाइटल एस्पेक्ट आनी चाहिए, और अभी तरह तरह के वोकेशंस भी आ रहे हैं। और एक बात तो ये हो गई कि स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट आप देखिए ना, उद्यमिता आवश्यक इसलिए भी हो गई है क्योंकि उस एस्पेक्ट्स पे अभी हमारे देश में बहुत टारगेट अचीव करना है इन कंपैरिजन टू डेवलप्ड इकोनॉमीज लाइक जापान, जर्मनी, यूएस, साउथ कोरिया। सो
हमें वोकेशनल एजुकेशन, अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने भी कहा है कि देयर शुड बी नो हार्ड बाउंड्रीज एज रिगार्ड टू एकेडमिक स्ट्रीम एंड वोकेशनल स्ट्रीम। तो बच्चे को कुछ ना कुछ साथ साथ में उसको करते रहना पड़ेगा। अब जैसे मालूम चला कि आपने मैथमेटिक्स में मास्टर्स किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप कुछ सॉफ्टवेयर जो अभी हैं, जो आ रहे हैं ओपन सोर्स के हैं, और उसके बारे में भी थोड़ा, क्योंकि ठीक है आप मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट भी उसको परस्यू करना चाहें, लेकिन अगर आपको कोई ज़रूरत पड़े, आपकी लैंग्वेज भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है ना। जी जी तो ये सारी चीज़ों का अगर एक स्किल सेट मार्केट में रिक्वायर्ड है, तो क्यों नहीं आपको साथ साथ थोड़ा वो भी दिया जाए, और जिसको लेके कम से कम आप वर्ल्ड ऑफ वर्क को तो ज्वाइन कर सकें, है ना। बिल्कुल। क्योंकि आपको एक बारगी जब हम शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं तो अर्जन की कुछ अर्जित करने की भी बात आती है, और परिवार की भी एक्सपेक्टेशन होती है, और ज़रूरी भी है कि हम कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी के पार्ट एंड पार्सल बने, कंट्री की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करें। तो इसलिए वोकेशनल एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जी जी coming back to the in between we try to just touch upon these particular issues, meeting challenges of life. जीवन भी एक एग्जामिनेशन है जहाँ हर रोज नए तरीके के चैलेंजेस आते हैं, जहाँ लाइफ स्किल्स की आवश्यकता होती है। खासतौर से जब आप नई जगह पे जाते हैं, भोजन की समस्या है, सर्वाइवल की समस्या है, चीज़ों को ढूंढना है, अपने अनुरूप वातावरण बनाना है, या अपने आप को उस वातावरण में ढालना है। तो जीवन की जो परीक्षाएं हैं, आपने अलग अलग जगहों पर बहुत सारी हम सभी ने दिए। मैं आपके जीवन के अनुभव से कोई अगर ऐसी बात आप सामने रखना चाहें कि किस तरह से आपका कोई एक इंस्टिंक्ट था या आपका कोई एट्रीब्यूट था, उसने आपको मदद की किसी भी तरह के कोई जीवन के खास एग्जाम को फेस करने के लिए। देखिए, एक चीज तो आपने जैसे कहा कि आपने भी खाना बनाने वगैरह की बात कही। जी जी तो एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल है। जैसे आपको मैं बताऊं, गर्ल्स के लिए, जैसे आजकल बॉयज के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैंने देखा है अभी सोसाइटी में कि थोड़ा गर्ल्स, जैसे ड्राइविंग फॉर एग्जांपल, अगर आपको पास अपॉर्चुनिटी है तो वन शुड लर्न टू ड्राइव आल्सो। बट जो आपको दूसरी चीज़ें मैंने महसूस किया कि वन थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट जो हमने खुद एक्सपीरियंस किया, जो बचपन से हमारे घर में हमें सिखाया गया कि इफ़ यू आर वेरी क्लियर इन योर कन्विक्शन and you are consciously clear in your conviction, don't fear from anything, and you be very bold to express yourself in a decent manner. तो मैंने ये महसूस किया कि ये जो कहीं भी किताबों से नहीं आया, लेकिन हमें घर में सिखाया गया, ये मुझे बहुत हेल्प किया कि एक्सप्रेस योर सेल्फ इन ए डिसेंट मैनर, बट वॉट एवर बी द प्लेटफॉर्म, either you have to keep mum, you feel that you have not to say something here, things may go wrong, but if you have to express, you express in a very clear manner, but you should be first of all very consciously convinced in your thought, in your opinion. तो ये स्किल भी मुझे लगा कि कई बार मुझे कई जगह सेव भी किया ये स्किल ने मुझे। जैसे कई ऐसे एकेडमिक के साथ साथ मेरे पास एडमिनिस्ट्रेटिव दायित्व भी रहे, और मैं आपको शायद ज्ञात हो कि मैं एनसीईआरटी का डायरेक्टर का भी चार्ज रहा मेरे पास। जी जी तो मैंने ये कई बार महसूस किया कि आप महसूस करते हैं कि आप को किसी चीज के लिए समटाइम्स द वर्ड्स आर पुट इन योर माउथ, और समटाइम्स समथिंग इज सेड दैट if you keep mum, so that will be considered as your achievement, or there are certain occasions when it is very important to clarify the situation. तो मुझे अच्छा लगा कि ये स्किल मेरा ठीक रहा कि चलो भाई हम कह दिए तो हम एक्सप्रेस तो कर दिए। तो दिस इज वन थिंग, और बाकी तो ठीक है, वी शुड बी वेरी, देखिए लिसनिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल।
I tell you. जी 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 बिल्कुल. It's a very important skill. It helps you very much. Many a times you win the situation if you are a good listener. बिल्कुल, हम हमेशा कम्युनिकेशन में अभी तक यही सिखाते आ रहे हैं, क्या बोलें, कैसे बोलें, अपनी हाँ, बात कैसे पहुंचाएं. लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है सर, मैं इस पर चाहूंगा आप इस पर और थोड़ा विस्तार से बात करें. लिसनिंग एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो शायद हम कहीं स्कूल में भी हमेशा बोलना सिखाते हैं, कैसे बोलें बोलें बोलें, सारी एक्सरसाइजेज सारी एक्टिविटीज बोलने से जुड़ी हुई है ना. हम स्टोरी टेलिंग में की जब हम बात करते हैं, अगर हम देखें जब हमारे ग्रैंड मदर्स हमें कोई स्टोरी सुनाती थी तो हमारे दिमाग में विजुअल्स क्रिएट होते थे उसके. तो वो एक हमारे लर्निंग का प्रोसेस था और हम कहीं ना कहीं हमारे विजुअलाइजेशन को इम्प्रूव कर रहा होता था. तो किस तरह से लिसनिंग स्किल्स जो है वो इम्प्रूव की जा सकती है. बहुत सारी समस्याएं इससे निदान हो सकता है. देखिए, लिसनिंग स्किल इम्प्रूव करें, इसके लिए सबसे पहले तो हम इस बात को अप्रिशिएट कराएं बच्चों में. स्टोरी टेलिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. स्टोरी टेलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लर्निंग ऑल्सो. एंड हम जो कहते हैं ना वैल्यू एजुकेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टोरी टेलिंग. एंड स्कूल में कभी जो ऐसे लोग हैं जो कि आउटसाइड द स्कूल, अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ जाती है जो लाइफ में उन्होंने अपने एक्सपीरियंस किए हैं और बता रहे हैं, तो उनके टॉक कराने चाहिए और सारी चीज़. और फिर उसके बाद हर बच्चे से 2 मिनट का समय देके पूछना चाहिए, व्हाट इज योर टेक ऑन द होल सेशन. एक दूसरा भी एक असेसमेंट का बहुत अच्छा तरीका जो मुझे लगता है वो ये लगता है कि एक एक्सप्रेशन का और लिसनिंग स्किल का, कि जैसे आप कोई आप 10 मिनट का किसी का टॉक है, उसको करने के बाद उसके बाद आप बोलो कि बच्चे से कि तुम 2 मिनट या 1 मिनट तुम बताओ इसमें से क्या तुम ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस है, समरी जो है उसका. समरी इसकी बताओ, तुम्हारा व्हाट इज योर टेक टू टेक. तो धीरे धीरे ये बच्चों को इंटरेस्टिंग भी लगेगा और इम्प्रूव भी करेगा, मैं आपको बताऊं. तो ये सारी चीजें करनी चाहिए, स्टोरी टेलिंग, इंटरेक्शन. फिर बच्चे को कहीं बोले कि तुम कुछ सोच के आओ बोलो, और फिर दूसरे बच्चे से बोले कि तुमने सुना फिर तुम बताओ, और उसको ये सारी तरह के इंटरेक्शंस बड़े फायदेमंद रहेंगे. और मैं आपको बताऊं क्या है आजकल की, जैसे एक तो लिसनिंग से थोड़ा जुड़ा हुआ, जैसे एक्सप्रेशन में आप जैसे किसी को 10 पेज का एक डॉक्यूमेंट दीजिए और पढ़ने के बाद उसको बोलो कि आपको इस डॉक्यूमेंट के बारे में 5 मिनट बोलना है. आप देखिए, अगर इंटेलिजेंट इवेल्युएटर होगा वो इवेल्युएट कर लेगा कई ऐसे एस्पेक्ट्स उस पर्सन के बारे में. उसकी सीरियसनेस वाइल रीडिंग, ability to identify the critical points, the crux, ability to find the linkages, okay, ability to find the gap in the document. ठीक है ना, कॉमन इंटरेस्ट का कोई डॉक्यूमेंट दीजिए. तो ये सारी चीजें बहुत फायदे करती हैं. बहुत इंटरेस्टिंग बात कही प्रोफेसर श्रीधर. मैं अभिभूत हूँ. आपने जो अभी पिछले 5 मिनट में जो बातें बताई कि किस तरह से लिसनिंग स्किल्स को जो है हम शार्पन कर सकते हैं, कि आप सुनिए, उसकी समरी बनाइए, कुछ एक नेसेसरी जो भी सर्टेन अमाउंट ऑफ पेजेस पढ़िए, कोई रिपोर्ट की पढ़िए और उसको समराइज कीजिए, गैप को ढूंढिए उसमें, उसमें से कुछ चीजें समरी की फॉर्म में अगर आप ले आए तो निश्चित तौर पर आपका जो रिसीविंग और आउटपुट का जो मैकेनिज्म है वो कुशलता की तरफ बढ़ रहा है, ऐसा बिल्कुल सामंजस्य बन सकता है. कमिंग टू दैट स्पेसिफिक पार्ट, जो समरी की जो आपने बात कही कि सुनना और फिर उसको समरी करके एक्सप्रेस करना, क्या हम इसको किसी एक फॉर्मल मैकेनिज्म के तहत स्कूल एजुकेशन में खास तौर से इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? देखिए, इसमें ये लार्ज स्केल एग्जामिनेशन सिस्टम में तो मुश्किल है, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस इसको नहीं सूट करेगा. बट टीचर शुड बी एबल टू गिव चिल्ड्रन अपॉर्चुनिटी ऑफ सच इंटरेक्शन, सच इंगेजमेंट. ये करना चाहिए, तो वो बहुत अच्छा होगा, ये मेरा कहना है.
डॉक्टर क्योंकि श्रीधर, आपने बहुत बड़ी बात आज के पूरे इस 1 घंटे के, लगभग 1 घंटे के संवाद में सबसे महत्वपूर्ण बात जो आई है, हम बचपन से यही सुनते समझते आ रहे हैं, अच्छे से बोलें, अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस करें, लेकिन मुझे लगता है कि मैं सहमत हूँ आपसे कि उससे पहले कहीं ज्यादा जरूरी है ठीक से सुनना। क्या बोलना है पहले वो तो समझ लें, कितना बोलना है, कहाँ बोलना है, कैसे बोलना है, वो सारी बातें बाद में आएंगी, लेकिन जो कंटेंट है सबसे पहले वो तभी जनरेट हो पाएगा जब आप श्रवण अच्छा है, आपका श्रोता अच्छे हैं। अच्छा गायक होने के लिए हमेशा गुरु महाराज कहा करते थे कि अच्छे सुनवैया बनो, पहले गवैया बाद में बनना, पहले सुनवैया बनो। तो कान अच्छे हैं तो आपका गला सुंदर आएगा। तो वो बात यहाँ शिक्षा में भी है, और टीचर इज द टॉर्च बियरर इन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट। ऑफ कोर्स फैमिली तो हमेशा से फर्स्ट स्कूल रहेगा ही, लेकिन टीचर, फॉर्मल ट्रेनिंग की हम बात कर रहे हैं, फॉर्मल स्कूलिंग की जब बात कर रहे हैं, तो उस टीचर्स को कम से कम इस विषय पे खास तौर से ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये वो जरूरी एस्पेक्ट है जो किताब के जरिए नहीं, वो आपके जरिए सीखा जा सकता है। एग्जामिनेशन पर वापस आते हुए, परफॉर्म अल्टीमेटली करना है। आपने बीच में एक्नॉलेज भी किया कि अंततः भाई कहीं ना कहीं मार्क्स की महत्ता भी है। ऑफ कोर्स उसको सर पे नहीं बैठने देना, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ लर्निंग के लिए ही करना है, लेकिन आपको अंततः कहीं ना कहीं उसे एक एक्सप्रेशन देने ही होगा, और उसका एवेल्युएशन भी होगा निश्चित तौर पर। तो प्लान टू परफॉर्म जो है, जो जर्नी टू परफॉर्म है, वो कब और कैसे शुरू की जाती है, और उसको किस तरह से हैंडल करना चाहिए? देखिए, जर्नी टू परफॉर्म में जैसे मैंने पहले कहा कि राइट फ्रॉम द एंट्रेंस टू दैट कोर्स और सेमेस्टर हमको तो करना ही चाहिए, और लास्ट में बिफोर द एग्जामिनेशन जो हमारे प्रिपरेशन का समय होता है, उसमें हमें थोड़ा कट दूसरे चीज़ों को कर्टेल करना चाहिए, कि जैसे नॉर्मल कोर्स में हम उतना मिलते ही हैं, फ्रेंड्स के साथ घूमते ही हैं, खेलते ही हैं, तो उसको थोड़ा तो टाइम को रीशेड्यूलिंग करनी ही पड़ती है। लेकिन मैं एक चीज़ जरूर कहूँगा कि जैसे फिर भी अपना इंडिविजुअल अगर आपका कोई कहते हैं ना पॉइंट ऑफ सोलेस है, जैसे आपको थोड़ा कुछ गाना सुन के, या कुछ नहीं आपको खाने के बाद 10 मिनट टहल के या कुछ, तो वो जरूर करिए। और मैं तो एक चीज मैंने जो बहुत, आपने थोड़ी देर पहले पूछा था कि आपका एक स्किल जो आपने लाइफ में बहुत अप्लाई किया, मैं हो सकता है मैं स्टैटिस्टिक्स का स्टूडेंट हूँ इसलिए इस चीज को समझ पाया कि लाइफ में ऑलवेज देयर इज अ फैक्टर चांस। तो आप अपने सक्सेस के लिए बहुत अटेम्प्ट करिए, सब करिए, लेकिन आप ये मान के चलिए कि वो जो गीता में भी कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप अपने जितने इनपुट फैक्टर्स हैं आप खूब अच्छे से कर दीजिए, और उसके बाद आप छोड़ दीजिए। आप बस ठीक है, हमारे हाथ में काम करना था, बस उतना हो गया, कर दिया हमने। That's it. चांस बस हमारे परफॉर्मेंस पर रहना। चांस है, चांस प्लेज ए रोल इन लाइफ। सो ठीक है when one door closes another opens there is a rule in life, when one door closes another opens। हाँ, तो वो और एक डेल कार्नेगी का बड़ा अच्छा किया है, God give me serenity to accept the thing that I cannot change, courage to change the thing that I can, and most importantly wisdom to know the difference। Well said, well तो expressed. इसीलिए ये एक चीजें छोटी मोटी हैं। अच्छा, one thing more I just want to tell you, given this opportunity, book reading is very important. I am talking about non-fiction. I am talking about non-fiction book. That gives a lot of insight about the life that we have to foresee unfolded in our own individual life. Because होता है ना, किसी ने जो लिखा है अपने एक्सपीरियंस से लिखा है, तो अगर आप नॉन फिक्शन पढ़िए तो आप थोड़ा सा, मुझे लगता है कि इजियर होता है टू हैंडल द थिंग्स। दैट इज व्हाट आई फील पर्सनली। बिल्कुल, आपकी अपनी जो नॉलेज विजडम है उसके बाहर जाकर के, दूसरे डोमेन में जाकर के आप चीज़ों को नए सिरे से समझने की कोशिश करते हैं। जी 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 जी। मुझे लगता है हमने ब्रॉडली जो भी इस विषय के संदर्भ में जो जो जहन में बातें हो सकती थी कवर करने की कोशिश की। स्टिल इफ यू फील
there is some point which is we have yet not covered? I don't know whether the listeners are still interested in listening or not. नहीं नहीं बिल्कुल, वो तो है, क्योंकि हमारी कॉन्करेंट लीडरशिप भी है, तो आज से आपसे बातचीत का मौका मिला है, तो इसका भरपूर लाभ लेना चाहेंगे. नहीं ठीक Yes, है. sir, we are interested. चेतन गांधी ने लिखा है. Yes, जी. sir, we are interested. जी. अच्छा. Anyways, so वही बातें हैं. और अब तो खैर फरवरी 25 है आज, और बच्चों का कहीं 11th के कुछ चल भी रहे हैं, वो 12th के भी एग्जाम. तो बच्चों को यही करना है कि भाई अपना बेस्ट देना है, अपने हेल्थ को. मैं जैसे जोकिंगली कई बार लाइफ में डिस्कशन में एक सेंटेंस कहता हूँ, you see, we have got only one life to live. You as Professor Sharma has got one life to live. I as Dr. Srivastava has got one life to live. So it's very important that we be healthy and happy also, contented, satisfied. So ये सारी चीजें. और पेरेंट्स को भी देखिए, पेरेंट्स को भी वाकई नहीं बच्चों को वो करना चाहिए. हम कभी किसी चीज को कहते हैं ना, वो इलास्टिक और प्लास्टिक. बिल्कुल. वो प्लास्टिक के सिचुएशन, और कैसे हम खींचते वो कर देते हैं, तो फिर कितना अफसोस होता है. तो फिर अफसोस करने का कोई स्कोप रह नहीं जाता. तो एग्ज़ाम के माहौल में हम सब पेरेंट्स को भी थोड़ा एक अपने को रिसर्च करना चाहिए कि नहीं भाई, हम सब बच्चों को हैप्पी रखें और ये करें. और यही सब चीज़ें हैं. आप देखिए कितने सक्सेसफुल लोग हैं लाइफ में. अगर आप उनसे बात करिए तो उन्होंने कॉग्निटिव डोमेन के अलावा वाली जो चीज़ें हैं, उनसे पूछिए कि आपने लाइफ में क्या लर्न किया. तो अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन. अब जैसे कोई पढ़ाकू ही है, हेल्थ ही नहीं है, हेल्थ में प्रॉब्लम आ रही है, तो चलना फिरना, खेलना कूदना सब कुछ ज़रूरी है. फिर उसकी कैसी टीमशिप कैसी है, उसकी दूसरे आजकल ट्रांसवर्सल स्किल जिसे बोला जा रहा है कि resilience, empathy, ability to appreciate others' point of view. These are very important things, and these are defining you when you enter the world of work or you join an organization, a team. If you are not having these kind of skills, you are defined by your peers in a very different manner, and that is causing you at times job also. So these things are very important. तो ये सारी चीज़ें होना चाहिए. और कभी भी कोई चीज़ परफेक्ट तो होती नहीं, जैसा हम सोचें वैसा ही परफेक्ट हो जाए, तो ये भी एक एलिमेंट है. तो इसीलिए जीवन में जो चीजें आती हैं उनको once you take the life as it comes. Live life as it comes. Yeah, Well once said. you take the life as it comes. So today's session is full of knowledge, information, and above all, wisdom of Professor Sridhar. We have tried to attempt to cover the whole topic in a holistic manner. That comes first of all examination phobia. So of course इस phobia से आप मुक्ति पा सकते हैं आपके आसपास के माहौल से, और एक्सपेक्टेशन को थोड़ा सा कम कर लेंगे तो निश्चित तौर पर उससे आपको आसानी होगी. और एग्जामिनेशन ठीक वैसा ही है जैसे कि क्रिकेट मैच खेलना, कि आप साल पहले जितनी जो अभ्यास करते हैं वही आप स्टेडियम में फाइनल डे पे करते हैं. हाँ जी. तो शुरुआत में ही आपको तैयारी अपनी रीडिंग की, लर्निंग की और अल्टीमेटली एक्सप्रेशन की वो करनी होगी, क्योंकि आपको 3 घंटे के समय में ही निश्चित समय में परफॉर्म करना है. तो आप किस तरह से प्रिसाइजली करें और क्या नहीं करें, दोनों ही बातें हैं. क्योंकि 8 नंबर का सवाल है और आप लिखे जा रहे हैं, 2 नंबर का सवाल है आप लिखे जा रहे हैं, उसमें 4 पेज लिख दिए, तो उससे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा. 2 नंबर तो अंततः 2 ही मिलेंगे. तो वो एक बैलेंस, चेक्स एंड बैलेंस है, वो आपका करने से ही आएगा. क्योंकि आप घड़ी लगा करके जब कहते हैं यार एग्जाम में एक क्वेश्चन रह गया, तो पहले कभी घड़ी लगा कर लिखने का अभ्यास ही नहीं किया, इसलिए वो रह गया. तो आपको यू नीड टू रिहर्स मोर एंड मोर सो दैट यू कैन डू वेल इन दोज 3 आवर्स टाइम. और आप एक भय मुक्त होकर के, चिंता मुक्त होकर के आप अपना नेचुरल गेम, परीक्षा को गेम की तरह आप ले सकें. खिलाड़ी के लिए जैसे हर टेस्ट, हर एक मैच जो है एक परीक्षा है, लेकिन उसे वो खेल कहता है, ना कि वो परीक्षा कहता है.
डूइंग व्हाट मैटर्स हमने कवर करने की कोशिश की। कॉपी और नॉट टू कॉपी में प्रोफेसर श्रीधर ने बहुत कैटेगरिकली कहा कि इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू ए लॉट, और अल्टीमेटली इट इज कनेक्टेड टू मार्क्स। तो आप जब तक मार्क्स के चक्रव्यूह में फंसे रहेंगे, ये टेम्पटेशन आपको बने रहेगा, ये दुविधा हमेशा रहेगी, जिससे एग्जामिनेशन में परफॉर्म करना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको अपना काम कर दिया, दैट्स इट, माय जॉब इज डन। अंततः जो मीटिंग लाइफ चैलेंजेस की जो बात थी कि पढ़ाई के अलावा भी बहुत कुछ है जो आपको स्कूल और आसपास के माहौल से सीखने की आवश्यकता है। बहुत सारी वोकेशनल स्किल्स की हमने बात कही, लाइफ स्किल्स की हमने बात रखी, और अंततः किस तरह से एक टीचर का रोल महत्वपूर्ण है, पेरेंट का रोल बहुत महत्वपूर्ण है अल्टीमेटली इस लर्निंग के प्रोसेस में और परफॉर्मेंस के प्रोसेस में, दोनों ही तरीकों से। और निश्चित तौर पर जैसा आपने कहा कि ये कोई मास प्रोडक्शन का मैकेनिज्म नहीं है, एक इंडिविजुअल के चरित्र का निर्माण करना, एक इंडिविजुअल व्यक्तित्व का निर्माण करना, एक इंडिविजुअल को सोसाइटी के लिए यूजफुल ह्यूमन बीइंग के लिए बतौर बनाना, एक इंडिविजुअल को अपनी जर्नी अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए तैयार करना, ये नगीने गढ़ने जैसा काम है, ये नक्काशी का काम है, जिसमें आप एक एक चीज को बड़े महीन तरीके से आप तैयार करते हैं। ये काम वो वैसा कतई नहीं है कि आप एक डाई है जिसके अंदर आप रॉ मटेरियल डालेंगे और आप प्रेस मशीन में रखेंगे और एक प्रोडक्ट बाहर आ जाएगा। अगर हमारी ऐसी सोच है तो फिर निश्चित तौर पर सही दिशा में नहीं जा रहा है। प्रोफेसर श्रीधर, आपकी बातें जो है बहुत जमीन से जुड़ी हुई थी, किताबी नहीं थी, सबसे खास बात। वरना होता यह है कि जब पॉलिसी मेकर्स आते हैं तो वो दे टॉक लॉट अबाउट पॉलिसीज, टैक्स ड्राफ्ट, दिस एंड दैट, पर आपने एक एज अ ह्यूमन बीइंग आपने जिन विषयों को छुआ, और खास तौर से जो लिसनिंग की आपने बात कही, क्योंकि मैंने बहुत कम जगहों पर सुना है, उस पर लोगों को एम्फेसिस करते हुए, आई थिंक समाधान वहीं से शुरू होगा। अगर माँ बाप बच्चे को सुनना शुरू कर दें, बच्चे माँ बाप को सुनना शुरू कर दें, टीचर्स को, और वाइस वर्सा, तो आई थिंक ये बोलने की बजाय लिसनिंग का जो माध्यम है वो ज्यादा बेहतर होगा, और इस तरह की जो समस्या है उसका निदान पाने के लिए हम आगे बढ़ पाएंगे। प्रोफेसर श्रीधर, हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट को आपने इमीडिएटली आपने स्वीकार किया, और आज खुशी की बात है, मैं हमारे देश के बाकी लोगों को बताना चाहूंगा कि आज शनिवार का दिन है, और मैं जब भी दिल्ली में देखता हूँ लोग शनिवार का ऑफ रहता है, लेकिन आप अभी 6 बजे आप ऑफिस में हैं, लाइट्स जल रही हैं, आप कागज फैले हुए हैं, तो मैं समझ पा रहा हूँ कि आपके पास कितना काम है। और देश को वाकई में प्रोफेसर श्रीधर जैसे लोगों की आवश्यकता है कि जो जमीन से जुड़े हुए हैं, और तब कागज पर वो नीतियां जो आती हैं वो इफेक्टिव होती हैं, और किसी दिन को घड़ी देख करके जो लोग काम नहीं करते हैं। सो थैंक यू प्रोफेसर श्रीधर बीइंग विद अस, और उम्मीद करता हूँ आगे भी आपका सहयोग हमें मिलता रहेगा। जी, धन्यवाद आपको इस अवसर के लिए, और सभी को मैं जो एग्जाम से जुड़े हुए लोग हैं, बच्चे हैं, सबको मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।